Hello everyone, welcome back to our channel, The Kraken. So I am Sumant and I am here with another case study, another session for the next CIB exam, ABM, and this case study is very important. Here some important concepts will be discussed as well, right? And from this case study, we will definitely have 2 to 3 marks in the exams from the module C. So let's start the session for today. And if you are new to our channel, then do like, share, subscribe to our channel so that you'll never miss any update from our channel, right? So share this session as well with your friends, those who are preparing for the exams. So let's start it for today. So here you can see one case study, that is transactional analysis. So you know what do you mean by the transactional analysis? So let's read the case study first. Here Mr. Gupta aged about something. See, in the exam you will have this case study, right? So before reading the case study completely, just go through the questions. That means what the question actually demands. Then accordingly we will analyze the case study and will answer. So let me show you. So here in the question 1 you can see the question is like, in which ego state Mr. Gupta directed Mr. Ramesh to follow the KYC guidelines as narrated by Mr. Gupta. So it's like in transactional analysis we know there are some different types of states. One is nurturing parent ego state, adult ego state, child ego state, critical parent ego state. That means to answer this question you need to know the definition of that is what is adult ego state, what is child ego state, and what do you mean by the nurturing parent as well as critical parent ego state, right? So that means to answer all this we read the theory in the module C, right? And this case study will help you to analyze the answer, to analyze the question, to get the answer. So that means this case study in the exam we are having some case study. That means this is something like additional benefits to us to answer the question. So hopefully you are getting my point. What I like to mention, that you just read the concept, try to revise it, and in the exam the case study will help you to get the proper or right the answer, right? So hopefully you read all the questions like one by shortly. Mr. Gupta had advised Mr. Ramesh to follow the KYC guidelines as narrated by him. Next day, Mr. Ramesh indicated that the instruction narrated by Mr. Gupta stands changed, which Mr. Gupta in which following requested the reaction of Mr. Gupta falls. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर मिस्टर गुप्ता ने जो मिस्टर रमेश को KYC गाइडलाइंस को इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए बोला थे, ठीक है. पर नेक्स्ट डे मिस्टर रमेश इंडिकेटेड दैट द इंस्ट्रक्शन नरेटेड बाय मिस्टर गुप्ता स्टैंड्स चेंज्ड. तो जो भी उनका इंस्ट्रक्शन दिया गया था बाय मिस्टर गुप्ता वो चेंज हो गया है. व्हिच मिस्टर गुप्ता इन व्हिच, ठीक है. सो यहाँ पर मिस्टर गुप्ता को मतलब गुस्सा आ गया क्योंकि उनका जो नरेशन था वो चेंज हो गया, ठीक है. सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं. नेक्स्ट है मिस्टर चंदन इमीडिएटली वेंट टू मिस्टर गुप्ता एंड टू पासिफाई हिम रिग्रेटेड टू मिस्टर रमेश बिहेवियर एंड assured मिस्टर गुप्ता दैट during the lunch break the staff members will sit together and sort out the issue. In which of the following you state the reaction of चंदन false. दैट मीन्स यहाँ पर मिस्टर चंदन जी गए एंड वो गुप्ता जी के पास गए एंड उनको थोड़ा बहुत अनरिग्रेटेड फॉर मतलब वहाँ पर गुप्ता जी के पास गए एंड जो भी रमेश जी का कुछ बिहेवियर था, क्योंकि गुप्ता जी ने कुछ डायरेक्शन दिए थे एंड रमेश जी ने उसको चेंज कर लिए थे. सो वो रमेश जी के बिहेवियर के लिए अपना जो रिग्रेट को शो ऑफ किए एंड उसके बाद उनको अश्योर किए मिस्टर गुप्ता जी को कि अभी एक लॉन्च टाइम में हम एक मीटिंग कराएंगे जिसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड विल सॉर्ट आउट द इशू, ठीक है. दैट मीन्स समथिंग पॉजिटिवनेस सो दैट जो भी कॉलेज के बेस में इशू हुआ होगा उसको सॉल्व करने के लिए. तो यहाँ पर कौन सा वाला स्टेट होता है, ठीक है. सो यहाँ पर भी अगर आप देखा जाए तो वी कैन यू गॉट द पॉइंट कि यहाँ पर हमें क्या जानना है. तो अगर हम केस स्टडी को थोड़ा पढ़ेंगे देन वी कैन सी ये जो 2 और 3 में ओबियसली डायरेक्टली दिया गया है, ठीक है. सो 2 और 3 में डायरेक्टली केस स्टडी को थोड़ा सा बताया गया. इसके लिए आपको आंसर जो है मतलब केस स्टडी को डायरेक्टली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली आंसर फ्रॉम दिस क्वेश्चन एज वेल. Without reading the case study you can easily answer, right? So try to answer it first, okay.
So see, in the first one, Mr. Gupta had advised Mr. Ramesh to follow the KYC instructions as narrated by him. Next day, Mr. Ramesh indicated that the instruction narrated by Mr. Gupta stands changed. So Mr. Gupta जी ने और Mr. रमेश को दिए थे कुछ नरेशन कि ऐसे ऐसे KYC इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए, पर मिस्टर रमेश ने क्या किया, अपना मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन मिला था मिस्टर गुप्ता के द्वारा उसको चेंज कर लिया, ठीक है. सो यहाँ पर वी कैन सी कि जो कि हुईच रिग द मिस्टर गुप्ता इन हुईच इको स्टेट द रिएक्शन ऑफ मिस्टर गुप्ता फॉल्स, ठीक है. सो यहाँ पर उनका जो रेस्पॉन्स था, जो भी इंस्ट्रक्शन था वो चेंज हो गया, इसीलिए वो थोड़ा ये हो गए, अलग मूड में आ गए. सो ये जो है मतलब सडनली जो होता है ना कि मैं ये बोला हूँ ये क्यों नहीं हुआ, दैट मीन्स वी आर फॉलोइंग अवर इमोशन. हमें समझना चाहिए कि एक्चुअली क्या हुआ था. सो अकॉर्डिंगली नीड टू, अगर हम अपना इमोशन के बेसिस में डिसीजन लेते हैं, देन नॉर्मली इमोशन के बेसिस में कौन डिसीजन लेता है, एडल्ट तो नॉर्मली सोच समझ के लेता है. नर्चरिंग पेरेंट अलग होता है, क्रिटिकल पेरेंट भी अलग होता है. नर्चरिंग पेरेंट वो होता है दैट इज़ जो कि केयर करते हैं अदर पीपल के लिए, ठीक है. और क्रिटिकल पेरेंटिंग को ये होता है कि अगर आप कुछ गलत काम करते हैं, बच्चों के जैसे पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर बच्चे कुछ गलत काम करते हैं देन उसके लिए उसको डांटते हैं, उनका अनडिजायरेबल बिहेवियर के लिए उनको डांटते हैं, ठीक है. सो ये हो जाता है क्रिटिकल पेरेंट, मतलब उनको तो केयर करते हैं, इसीलिए डांटा जाता है कि उनका जो अनडिजायरेबल जो कि बैड बिहेवियर है एंड जो कि नहीं उनको करना चाहिए वो डांटेंगे, तभी तो वो चीज़ रिपीट नहीं होगा. सो यहाँ पर देखिए अडल्ट ये सबके केस में कुछ ना कुछ थिंकिंग होता है, कुछ ना कुछ मतलब हम इमोशन के बेसिस में नहीं, एक पर्टिकुलरली इन रियल बेसिस में थिंक करके डिसीजन लेते हैं. पर चाइल्ड ईगो स्टेट में हम क्या होते हैं, अपना इमोशन के बेसिस में डिसीजन ले लेते हैं. सो ये हो जाता है आपका इमोशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग. सो फर्स्ट वाला से आपको पता चल गया होगा थोड़ा बहुत. एंड 3B को देख लेते हैं. 3 में है, अगर देखा जाए तो मिस्टर चंदन इमीडिएटली वेंट टू मिस्टर गुप्ता. तो यहाँ पर जो है केयर किए हैं. सो जब हम मतलब एक एडल्ट का मतलब यहाँ पर देखिए फर्स्ट है, ये ओबियसली डायरेक्टली क्या हो जाता है एडल्ट, क्योंकि एक एडल्ट क्या होता है वो सिचुएशन को समझता है, उसको सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करता है एंड एक वेल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए क्या क्या कर लेना चाहिए, वही था यहाँ पर चंदन जी बिहेवियर का इफेक्ट, ठीक है. सो होपफुली आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा. ये मेरे को पहले में थोड़ा आपको जो थोड़ा बहुत हिंट्स दिया, इसका मतलब ये है कि अगर आपको एग्जाम में केस स्टडी आप फुल पढ़ भी नहीं पाते हैं, आपको लास्ट मोमेंट में बाई चांस होता है, टाइम तो बहुत होता है, यू कैन इजीली आंसर, फिर भी पेशेंसली पहले केस स्टडी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, क्या क्वेश्चन डिमांड करता है उसके अकॉर्डिंगली हम केस स्टडी को करेंगे, ठीक है. सो चलिए अभी हम केस स्टडी को रीड करते हैं. लेट्स रीड इट एंड आप लोगों भी साथ साथ यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड द क्वेश्चन, रीड द केस स्टडी एंड देन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, राइट. And it really helps you in a long term and you know this module, see this HRA module is समथिंग लाइक मोर इंटरेस्टिंग जब आप इसको अपना जो वर्क प्लेस के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है. एंड ये नॉर्मली हमारे साथ ही होता है, ठीक है. सो आप जब कनेक्ट करेंगे यू कैन इजीली आंसर इट एंड ये आपको बोर भी नहीं लगेगा. फॉर श्योर बोर लगेगा इनिशियली, पर आप उसके ऊपर जब रिवाइज करेंगे, आप जब चीज़ों को समझना स्टार्ट करेंगे, देन इसमें आपको इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट करेगा. बिलीव मी, मैं खुद किया हूँ एंड आई ऑल्सो बिलीव कि आप लोग भी अगर थोड़ा बहुत आपके लिए अभी 15 डेज बचा है, ठीक है. सो लेस टाइम में आपको मॉड्यूल सी डेफिनेटली हेल्प करेगा ABM अच्छा मार्क्स 50 एबव मार्क लाने में, ठीक है. एंड इसमें कुछ नहीं, आपको एक बार पढ़ लेना है, बार बार आपको रिवाइज करना है, ठीक है. सो अभी चलिए हम केस स्टडी को करते हैं जल्दी से. सो हियर कैन सी फर्स्ट वन इज लाइक एक सेकेंड. So here you can see Mr. Gupta, aged about 47, joined the bank about 25 years back and is presently working as manager operations in a city branch of the bank. ठीक है. सो ही रिमेंड वेरी एक्टिव इन, मैं फर्स्ट वर्ड लूँगा एंड उसके बाद थोड़ा बहुत समरी बता दूंगा इसका मीनिंग क्या है, ठीक है. अगर हम थोड़ा थोड़ा का मीनिंग बताने जाते हैं देन उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है. सो एक बार मैं पढ़ लेता हूँ एंड साइमल्टेनियसली मैं आपको ओवरऑल मीनिंग बता दूंगा, ठीक है. सो ही रिमेंड वेरी एक्टिव इन ऑफिसर्स एसोसिएशन एक्टिविटीज़ although for some time now
ही डिसएसोसिएटेड हिमसेल्फ फ्रॉम सच एक्टिविटीज़, ठीक है। दैट मीन्स मिस्टर गुप्ता जी ने जिनका एज है 47, वो 25 ईयर्स पहले अभी ज्वाइन किए थे, पर अभी नाउ है मैनेजर इन ऑपरेशन पोस्ट में है, ठीक है। गॉट, एक सेकेंड। सो यहाँ पर उनका जो पोस्टिंग है सिटी ब्रांच में ओबियसली हुआ है, ठीक है। सो ही रिमेंड 1 सेकेंड, ठीक है। एंड जो कि ऑफिसर एसोसिएशन में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, पर अभी फिलहाल ही वो अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिए हैं फ्रॉम सच एक्टिविटीज़। टुडे मॉर्निंग मिस्टर रमेश, ए जूनियर क्लर्क, came to his table and sought his guidance on some issues related to know your customer documentation guidelines. Mr. Gupta informed Mr. Ramesh about the guidelines and directed him to follow this. Ramesh, however, was of the opinion that information given by Mr. Gupta is not current and there is some modifications, ठीक है। सो कुछ KYC रिलेटेड जो है रमेश जी एक क्लर्क थे जो उसके गाइडेंस के लिए उनसे कुछ आए थे पूछने के लिए, और गुप्ता जी ने उनको बता दिए कैसे कैसे, एंड उनको बोले कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो करने के लिए। पर रमेश जी ने ये बोले कि आप जो बोल रहे हैं, गुप्ता जी ने जो बोले हैं वो थोड़ा करेंटली नहीं है, सही होगा पर वो थोड़ा प्रीवियसली था, अभी जो करंट है शायद कुछ न्यू अपडेट आ गया होगा, एंड देयर इज सम मॉडिफिकेशन। उस जो गाइडलाइंस वो बताए हैं उसमें से कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है। ये किसने बताया? रमेश जी ने बताया, ठीक है। सो नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर रमेश एजेंट अगेन वेंट टू द टेबल ऑफ मिस्टर गुप्ता एंड टोल्ड हिम, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है, उनका एज है 47 एंड वो 25 ईयर्स पहले ज्वाइन किया था, ठीक है। सो टोल्ड हिम दैट ही हैज़ लर्न दैट द गाइडलाइंस स्टैंड्स मॉडिफाइड, इंपॉर्टेंट थिंग। ही ऑल्सो इन्फॉर्म हिम अबाउट द चेंज्ड गाइडलाइंस। दिस इग्ड मिस्टर गुप्ता ऑल्दो ही डिड नॉट से एनीथिंग, ठीक है। सो दिस इग्ड का मतलब ये हो जाता है कि समथिंग लाइक इरिटेट और अनॉय, ठीक है। सो शायद यहाँ पर उनको अनॉय फील होगा और इरिटेट फील हुआ होगा, इरिटेट भी हो सकता है पर यहाँ पर अनॉय फील हो सकता है, ठीक है। ही डिड नॉट से एनीथिंग, सो कुछ बोले नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर इरिटेट होते तो वो थोड़ा रिएक्ट करते, दैट मीन्स हियर इट मीन्स अनॉयड, ठीक है। So Mr. Ramesh, however, could notice that Mr. Gupta has not taken this information well, ठीक है। सो रमेश जी ने तो बस गए थे उनके पास ये बताने के लिए कि ऐसा ऐसा कुछ चेंजेस हुआ है एंड ये अपडेटेड है, पर जो कि शायद गुप्ता जी को थोड़ा बुरा लगा, एंड रमेश जी ये देख पाए कि वो उनका मीनिंग तो ये नहीं था ना उनको बुरा फील कराना, पर फिर भी ये वाला जो है चीज़ उनको बुरा लगा है, ठीक है। सो व्हेन रमेश वेंट बैक टू हिज table, he narrated this incident to another clerk sitting there. Mr. Gupta does not know much in spite of his seniority and experience. That means अभी मिस्टर रमेश जी और एक जो है उनका क्लरिकल उनका जो कॉलिग्स है उनके पास जाके बताया कि मिस्टर गुप्ता जी इतने सीनियर्स है, क्योंकि 25 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस है, ठीक है। फिर भी उनके पास थोड़ा बहुत जो है इतना आइडिया भी नहीं है, उनके पास इतना नॉलेज भी नहीं है, ठीक है, इतने सीनियर होने के बाद भी। मिस्टर गुप्ता ओवरहर्ड दिस कमेंट एंड ही वाज बैडली अपसेट। सो मिस्टर गुप्ता जी ये वाला पॉइंट को शायद सुन लिए थे एंड उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। इन ए फिट ऑफ एंगर ही स्टार्टेड शाउटिंग एट मिस्टर रमेश, ठीक है, ऑब्वियसली। और यहाँ पर देखिए पॉइंट था, हम जो थर्ड क्वेश्चन वाला पढ़ रहे थे ना, सो यहाँ पर पॉइंट था, वहाँ पर ज़्यादा आंसर नहीं दिया गया था। अगर आप इसको पढ़ते हैं देन यू कैन इजीली आंसर इट। सो थोड़ा बहुत क्वेश्चन को पढ़िए, मैं उस वहाँ पर बताया था कि अगर शॉर्ट टाइम अगर होता है तो कैसे बताएं, पर अब अगर यहाँ पर पढ़ लेते हैं देन आपका जो है क्वेश्चन का जो आंसर है कंप्लीटली मेक श्योर हो जाएगा कि एक्चुअली हाँ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, फर्स्ट तो कुछ रिएक्ट नहीं किए थे, पर यहाँ पर जो है रमेश जी ने ये बार कमेंट मार दिए कि उनको शायद इतने सीनियर है पर उनको कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर मिस्टर गुप्ता जी ने जब सुन लिए उनको बहुत बुरा लगा एंड वो एंगर मतलब एंग्री मोड में आ गए तुरंतली सडनली, ठीक है। एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग एंड मिस्टर रमेश, सो मिस्टर रमेश के ऊपर बहुत ज़्यादा शाउट करना, यहाँ पर देखिए पॉइंट, और रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो एज ए रिजल्ट मिस्टर रमेश ऑल्सो गॉट एंग्री एंड मेंटेन दैट ही सेड नथिंग एंड शुड मेक मिस्टर गुप्ता अनकम्फर्टेबल, ठीक है। सो रमेश जी भी मतलब गुस्सा हो गए एंड वो बोले कि वो कुछ ऐसा बोले ही नहीं है जिससे कि मिस्टर गुप्ता जी को बुरा लगना चाहिए, राइट। So everyone present in the branch including some customers were looking at Mr. Gupta, ठीक है।
सो बहुत सारे कस्टमर, क्योंकि ब्रांच में उनका प्रेजेंट थे, सो कुछ कस्टमर्स भी थे और सो उनके सामने ये हो रहा है, सो दैट्स नॉट ए गुड थिंग, पर सब कुछ देख रहे थे। सो मिस्टर चंदन जो कि एक ऑफिसर है, ठीक है, हु आर ज्वाइन द ब्रांच फ्यू मंथ्स एगो, इमीडिएटली सी जो कि ज्वाइन किया है रिसेंटली, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इमीडिएटली वेंट टू मिस्टर गुप्ता एंड टू पेसिफाई हिम, उनको थोड़ा सांत्वना जो बोलते हैं, उनको थोड़ा शांत किए, ठीक है। ही रिग्रेटेड फॉर रमेश बिहेवियर, एंड यहाँ पर मिस्टर चंदन जी जो रमेश जी का बिहेवियर थे उसके लिए थोड़ा बहुत रिग्रेट किए, एंड लाइक हम बोल देते हैं उनके तरफ से हम सॉरी, जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं ना, ठीक है सर आप थोड़ा शांत हो जाइए, चिल करिए, कूल हो जाइए, और हम रमेश जी की तरफ से मतलब आई डू रिग्रेट, उनको ऐसे नहीं करना था शायद, तो ऐसे उनको बोल के थोड़ा शांत करने की कोशिश की। एंड अश्योर्ड मिस्टर गुप्ता, सो गुप्ता जी को ये भी अश्योर किए कि ड्यूरिंग द लंच ब्रेक द स्टाफ मेंबर्स विल सिट टुगेदर, तो उनको ये बोला गया कि हम साथ में बैठेंगे, जो भी स्टाफ मेंबर्स है, स्टाफ मीटिंग किया जाएगा, थोड़ा सा डिस्कशन, ठीक है, सिट टुगेदर एंड सॉर्ट आउट द इशू, ठीक है। सो यहाँ पर चंदन जी है जो कि अभी जस्ट रिसेंटली मतलब ज्वाइन किया था, वो जो है सिचुएशन, क्योंकि कस्टमर के सामने अगर स्टाफ लोगों के बीच में ही झगड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, दैट मीन्स इट विल ब्रिंग समथिंग बैड इंप्रेशन। तो इससे दैट मीन्स ये जो चंदन जी का स्टेट ऑफ माइंड है, दैट्स ए वेरी गुड स्टेट। वी कैन एक क्वेश्चन था ना लास्ट वाला क्वेश्चन, चंदन जी का बिहेवियर क्या है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर एक आपका मिस्टर गुप्ता, ठीक है, सो जिनका एज 47 है एंड 25+ ईयर एक्सपीरियंस है, ठीक है, एंड जो रमेश है वो एक क्लॉरिकल पोजीशन में है, दैट मीन्स यहाँ पर ये है ऑफिसर, मतलब समथिंग लाइक BM मैनेजर पोजीशन में, ठीक है, मैनेजर। एंड यहाँ पर देखिए और एक आ गया, सॉरी चंदन, एक सेकेंड, सो चंदन जो है वो अभी जस्ट रिसेंटली ज्वाइन किया है, वी कैन से मंथ्स, सम मंथ्स, समथिंग लाइक कितना पकड़ लीजिए 4 मंथ एक्सपीरियंस हुआ है। अगर रिसेंटली ज्वाइन किया वी कैन एक्सपेक्ट कि उसका जो एज है समथिंग लाइक 23 to 25 के अंदर हो सकता है, ठीक है। सो इतने कम एज में भी वो ये जो मैटर को बहुत ज़्यादा कूल के साथ हैंडल किया। सो यहाँ पर जब सिचुएशन को संभालने के लिए आप आराम से चिल करके सिचुएशन को संभालते हैं, अपना इमोशन के ऊपर नहीं जाते हैं, ठीक है, नॉट इमोशनली बट प्रैक्टिकली आप सोचते हैं, ठीक है, दैट मीन्स उस टाइम आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो हो जाएगा दैट इज अडल्ट, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट है, आप इमोशनली आपको सोचना नहीं है, जो भी आपका है प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, उसका क्या इफेक्ट हो सकता है उसके बारे में सोच के हम जब कूल होकर डिसीजन लेते हैं, ठीक है, चाहे जितना भी गुस्से का माहौल होता है, हम बैंकर से एंड एज एन ऑफिसर आपको पता है कि कितना रैंडम डिसीजन हमें लेना पड़ता है कस्टमर को हैंडल करने के लिए। सो वी कैन से मेनी बैंकर्स आर इन एडल्ट ईगो स्टेट, ठीक है। सो यू कैन कनेक्ट लाइक दिस यार, हम डेली लाइफ में ऐसे ही डील करते हैं, राइट। एंड यहाँ पर जो गुप्ता जी है, गुप्ता जी तो चिल थे, फर्स्ट वाला कमेंट उनको बुरा लगा ऑब्वियसली, पर रमेश जी का ये इंटेंशन नहीं था, वो सोचे कि ये वाला थे। एंड यहाँ पर देखिए ऑब्वियस थिंग है, जो 47 ईयर्स मतलब 25 ईयर्स है, तो शायद उनको हम मतलब काम डिफरेंट उनको रोल मिला होगा, इसलिए वो अपडेट नहीं दे पाए होंगे। सो यहाँ पर रमेश जी को भी समझना चाहिए था, वो जो कमेंट था वो होता है, हम भी अभी समझते हैं, ठीक है। सो गुप्ता जी पर जो सेकेंड में जो कमेंट था उनको कूल होकर भी हो सकता था, हम चिल करके भी कभी कभी ऐसे कमेंट को हैंडल कर लेते हैं। एंड यहाँ पर गुप्ता जी जो साउट कर दिए, यहाँ पर थोड़ा हो गया कि यहाँ पर वो इमोशनली हो गए, उनको लगा कि मेरे बारे में ऐसे बोला जा रहा है, तो इमोशनली रिएक्ट कर दिए। सो यहाँ पर जो इमोशनली रिएक्ट करता है अपना, उसको हो जाएगा आपका चाइल्ड ईगो स्टेट। तो कीवर्ड क्या है यहाँ पर, इमोशनली, एंड एडल्ट के लिए प्रैक्टिकली, गॉट इट। सो होपफुली आप लोगों को अभी थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि हम क्या करना चाहते हैं, गॉट इट। सो नाउ चलिए हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इन व्हिच ईगो स्टेट मिस्टर गुप्ता डायरेक्टेड मिस्टर रमेश टू फॉलो द KYC गाइडलाइंस आज नरेटेड बाय मिस्टर गुप्ता। सो जो भी उनका मतलब जैसे कि यहाँ पर देखिए, फर्स्ट जब रमेश जी आए थे पूछने के लिए, तो मिस्टर गुप्ता जी ने उनको सब कुछ समझाए, ठीक है। सो इट्स लाइक अगर हम बताएं समझाए, ठीक है, मेक हिम अंडरस्टैंड।
एंड उनको बोले कि ये वाला फॉलो करो, ठीक है। दैट मीन्स जब आपको कोई मतलब पकड़ लीजिए आप एक छोटा मतलब एक है ए एंड उसका जो है बी है पेरेंट्स, ठीक है। जो भी डाउट्स होता है ए मतलब अपना जो है उनका चाइल्ड का, तो जाता है अपना बी के पास पूछने के लिए। और यहाँ पर पकड़ लीजिए ए जो है रमेश है क्लॉरिकल है एंड एक जूनियर है एंड बी जो है सीनियर है अपर मोस्ट है, ठीक है। तो ए ने जब बी के पास गया है, ठीक है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं जूनियर एंड सीनियर। तो यहाँ पर बी ने इतने मतलब सीनियर भी है फिर भी वो समझाए, दैट मीन्स वो केयर करते हैं। अदरवाइज कुछ कुछ सीनियर्स तो इतने समथिंग लाइक एटीट्यूड हो जाता है कि मतलब अलग टाइप का, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट लोग मिलते हैं एंड हर कोई सेम नहीं होता है। तो यहाँ पर जो समझाए थोड़ा बहुत उनको समझाए एंड पूरा डिटेल उनको जो भी पता था वो आराम से बताए, ठीक है। सो मे बी इन द लाटर स्टेज ऑफ दिस केस स्टडी हमें पता चला कि मे बी थोड़ा अपडेशन हो गया था, पर वो समझाने की कोशिश की एंड जब समझाने की कोशिश किया जाता है तो यहाँ पर होता है नॉर्मली पेरेंट्स लोग भी अपना जो बच्चे हैं उनका जो चिल्ड्रन है उनको समझाते हैं कि ये वाला करना, जो कुछ भी डाउट होता है उसको वो ट्राई करते हैं जिनको जितना भी उनको आता है उसको समझाने के लिए, ठीक है। सो वो केयरली एंड उनको बोले कि इसको फॉलो करने के लिए। सो यहाँ पर जो ईगो स्टेट है इसको हम बोला जाता है नर्चरिंग पेरेंट ईगो स्टेट। सो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा इज द करेक्ट आंसर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एंड जो डिफरेंस हो जाएगा देखिए, क्रिटिकल ईगो पेरेंट ईगो स्टेट मतलब अगर कुछ गलत किए, जैसे कि पकड़ लीजिए ए ने कुछ गलत कर लिया, उसको केयरफुली हैंडल करके, ठीक है, जो कि अनडिजायरेबल बिहेवियर है उसके लिए उनको बोला जाएगा क्रिटिकली समथिंग लाइक क्रिटिकली पेरेंट्स ईगो स्टेट। आप उनको इसीलिए समझाना चाहते हैं कि ये वाला रिपीट ना करें सो दैट। पर यहाँ पर अगर जो भी देखिए नेक्स्ट केस स्टडी को बोलते हैं, मतलब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को, मिस्टर गुप्ता had advised Mr. Ramesh to follow the KYC guidelines instructed as narrated by him. Next day Mr. Ramesh indicated that the instruction narrated by Mr. Gupta stands changed, मतलब जो है वो चेंज हो गया, which इग्ड Mr. Gupta जो कि आना फील हुआ, ठीक है। in which of the following you state the reaction of the Mr. Gupta false। सी यहाँ पर जो उनको आना फील करने का कुछ ज़रूरत ही नहीं था अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए, ठीक है। क्योंकि अगर रमेश जी आपको कुछ बोल रहे हैं हमें एक्सेप्ट कर लेना है यार, मतलब हाँ मैं अपडेटेड नहीं था, शायद आप जो बोले सही है, ठीक है। पर यहाँ पर अनॉय जो फील करना शायद उनको थोड़ा बहुत जो बुरा लगा, ठीक है। सो ये वाला जो है वो अपना इमोशनली इसको डिसीजन ले लिए। सो दैट्स व्हाई दिस इज इमोशनली मतलब चाइल्ड ईगो स्टेट हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर मिस्टर चंदन इमीडिएटली वेंट टू मिस्टर गुप्ता, क्यों गए? क्योंकि उन दोनों के बीच में थोड़ा हॉट टॉक हो गया था, ठीक है। सो यहाँ पर गए एंड वहाँ पर जो है रमेश जी उनको बताया कि चलिए गुप्ता जी जो हो गया उनके तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं एंड नेक्स्ट टाइम से ये वाला रिपीट नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो आपका है सी टुगेदर एंड इसके बारे में हम उसको कुछ ना कुछ आंसर निकालेंगे। सो इसका जो आंसर हो जाएगा यही चारों क्वेश्चन ही ऑप्शन है एंड इसका जो आंसर हो जाएगा आपका द आंसर इज एडल्ट ईगो स्टेट, ठीक है। एंड एडल्ट ईगो के लिए क्या है, आपको प्रैक्टिकली जो है सिचुएशन को समझना है एंड उसके अकॉर्डिंगली अपना जो है इमोशनली नहीं थोड़ा बहुत मैच्योर के साथ ही डिसीजन लेना है, ठीक है। एंड देखिए क्रिटिकली पेरेंट ईगो स्टेट कौन सा वाला हो सकता था, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, यही क्वेश्चन के अंदर हम अगर एनालिसिस करें, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर गुप्ता जी ने उनको सुन लिए एंड दिस कमेंट एंड ही वाज बैडली अपसेट। सी यहाँ पर जो है ये अगर लाइन को हम चेंज कर ले कि ये जो है रमेश जी ने ऐसे किए, गुप्ता जी ने सुन लिए, फिर वो जाके रमेश जी को बोले देखो मेरे को ना, अगर मैं प्रैक्टिकल में बोल रहा हूँ मैं हूँ गुप्ता जी, ठीक है, तो फिर मैं जाके रमेश को बोलूँगा कि देखो भाई मैं ना इसको मैं शायद पहले पढ़ा था अभी चेंज हो गया होगा, एंड मजाक में हम ब्रांच में बोलते हैं देखो हाँ आ गया होगा, इतने सारे चेंजेस होता है, हमारा इतने सारा काम होता है, कैसे अपडेट रहे, ठीक है। चलो भाई थैंक यू, आपने मेरे को अपडेट करा लिए, सो चलो मेरा अपडेट हो गया, एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम से तो मैं इसको ही फॉलो करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पर रमेश जी एंड पर इसके बारे में आप जाके दूसरे मतलब क्लर्क को बोलोगे कि नहीं मेरा नॉलेज नहीं है यार, काम रहता है यार, मतलब ऐसा बात नहीं है। अगर इसको समझाए थोड़ा बहुत डांट भी देते उसके लिए कि नहीं दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट द वे ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर, राइट। सो देन वो हो जाता है आपका क्रिटिकल पेरेंटिंग, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जूनियर वो है वो सुनता, पर यहाँ पर थोड़ा डांट देते मतलब नॉट लाइक एंगर हो गया, ठीक है, कि आपने जो बोल रहे कैसे बोल सकते हो यार, मतलब इसको एक अलग वे होता है। तो वहाँ पर आपका यहाँ पर अगर होता है ना क्रिटिकल पेरेंटिंग, वो अपना क्रिटिकल जो पेरेंटिंग ईगो है ना उसको यूज कर सकते थे, क्योंकि रमेश का जो था नेक्स्ट यहाँ पर तो ठीक था, उसको लगा कि हाँ यार यहाँ पर बुरा लगा है, पर यहाँ पर जो रमेश का नेक्स्ट स्टेप था यहाँ पर वो गलत था। एंड जब बच्चे गलत होते हैं पेरेंट्स तो ओबियसली उसको मतलब क्रिटिसाइजेस मतलब उनको डांटते हैं,
टू मेक देम करेक्ट सो दैट, क्योंकि ये अगर रमेश को डाटा नहीं जाएगा यहाँ पर, थोड़ा बहुत करके समझाया नहीं जाएगा, देन उसका ये बिहेवियर अच्छा नहीं रहेगा इन द प्रोफेशनल कैरियर, ठीक है। सो ऐसे हमें क्वेश्चन को एनालिसिस करके, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट बोला गया है मिस्टर गुप्ता हैड एडवाइस्ड, क्यों यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन में मिस्टर चंदन इमीडिएटली वेंट, क्यों गए, क्योंकि यहाँ पर एक हॉट टक हो गया था ना यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर ये हॉट टक हो गया था। सो अगर आप इसको पढ़ते हैं थोड़ा बहुत जल्दी से पढ़ लीजिएगा एंड डायरेक्टली गो टू द क्वेश्चन। आपको बस इसको ज़्यादा इतना पढ़ना नहीं है कि समझना है, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ते जाइए। अगर वर्ड का मीनिंग, और एक बात है जैसे ईट का मीनिंग मतलब क्या है, जब आपको लगता है कि यार मैं जो बोला हूँ और वो चेंज हो गया, कोई जूनियर आपको बोलता है, ऑब्वियसली बुरा लगता है। सो ईट का मीनिंग ऑब्वियसली बुरा ही होगा, ठीक है। हमें पर्टिकुलर मीनिंग को याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ईट का मीनिंग यही हो सकता है। सो ऐसे आप गैस मार के थोड़ा समझ में आ जाता है, दिस इज द सिक्स सेंस, और ऐसे ही मतलब करके हम तो यहाँ पर पहुँचे ही है, ठीक है। सो दिस इज द वे यू कैन फॉलो इट इन द एग्जाम एज वेल, एंड आपका आराम से केस स्टडी रिलेटेड जो है मॉड्यूल सी का आंसर आराम से हो जाएगा। सी यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है, मैं हमेशा इसीलिए मेंशन करता हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर आप केस स्टडी को पढ़ते हैं ना, अगर आप यहाँ पर केस स्टडी को पढ़ते हैं, देन यहाँ पर आपका जो केस स्टडी ही आपको डाटा देगा टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। पर नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल के केस में, वहाँ पर आपको केस स्टडी से इतना कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत डाटा मिलेगा पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई इन एबीएम दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप जो है केस स्टडी को मतलब थोड़ा बहुत ट्राई करिए ओवरऑल आइडिया ले लेने के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद आप इजीली आंसर कर सकते हैं। बिलीव मी, आपको एबीएम बहुत इजी लगेगा। मॉड्यूल सी कैन मेक यू टू स्कोर मोर देन 50, ठीक है, इन एन इजीएस्ट वे। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक सेशन में, एंड होपफुली आप लोगों को ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक इट देन डू लाइक से सब्सक्राइब एंड like this video as well if you like it, and share with your friends जो लोग आपका एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि कुछ लोग मतलब सेशंस देखते हैं पर सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं। पर यू नो इफ़ यू सब्सक्राइब द चैनल देन आवर कम्युनिटी विल बी समथिंग लाइक मोर एंड मोर बिगर, एंड विल ऑल्सो हैव सम बैंकिंग रिलेटेड एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द कमिंग डेज। सो लेट्स चिल एंड लर्न द थिंग्स। So happy learning, and just enjoy this preparation period, and take care. See you guys in the next session. तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। ठीक है, बाय बाय।